this is the third week I'm speaking. यह तीसरा हफ्ता है जब मैं प्रचार कर रहा हूँ. I thought this week Ranil will speak, but yesterday he called and threw the ball in my court. इस हफ्ते मैंने सोचा कि भाई अनिल बोलेंगे, मगर कल उन्होंने फोन किया और गेंद मेरे तरफ लुढ़का दी. So this month we are looking into the sufferings and the death on the cross of Lord Shri Jesus Christ. इस महीने हम प्रभु श्री यीशु के दुख उठाने और क्रूस पर मृत्यु पर विचार कर रहे हैं. Every month we take one topic of the life of Lord Shri Jesus and try to learn something from it. हर महीने हम प्रभु श्री यीशु की जिंदगी की एक घटना को, एक कहानी को लेकर उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं. So we are going to try to learn something from another passage of suffering of Lord Shri Jesus. तो आज हम प्रभु श्री यीशु के दुख उठाने पर एक और भाग में से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे. Lord Shri Jesus was talking to his disciples. प्रभु श्री यीशु अपने शिष्यों से बात कर रहे थे. And he said to them that beware of the leaven of Pharisees and Sadducees. और प्रभु श्री यीशु ने उनसे कहा कि फरीसियों और सदूकियों के लेवन से सावधान रहो. And there he was trying to tell them beware of their deception. और प्रभु श्री यीशु इस बात को कहने की कोशिश कर रहे थे कि उनके धोखे से सावधान रहो. But the disciples could not understand it. किंतु शिष्य इसे समझ नहीं पाए that what Lord Shri Jesus was trying to say. कि प्रभु श्री यीशु किस चीज को कहने की कोशिश कर रहे हैं. And they were beginning to talk about what Lord Jesus is trying to say. Is he talking about bread? और प्रभु इस बात पर विचार करने लगे कि क्या प्रभु श्री यीशु रोटी के बारे में बात कर रहे थे. What was he talking about? वे किस चीज की बात कर रहे थे. But Lord Jesus tells them that do you not understand it? और प्रभु श्री यीशु ने उनसे कहा क्या तुम इसे नहीं समझते. That I have fed 5,000 people with 2 loaves of bread and few. And so प्रभु श्री यीशु इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या तुम नहीं समझते कि मैंने 5,000 लोगों को केवल 2 रोटियों से खिला दिया. So why you are not able to understand it that it is not about bread? तो तुम इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि यह रोटी के बारे में नहीं है, but it has to do with something else. किंतु यह किसी और चीज के बारे में है. So that time the disciples understood that it was about the deception of the Pharisees and Sadducees. So उस समय शिष्य इस बात को समझ पाए कि यह फरीसियों और सदूकियों के धोखे के बारे में है. So Lord Jesus was trying to create a background before he comes and tells them about his suffering. प्रभु श्री यीशु इस बात के बारे में बताने से पहले कि प्रभु श्री यीशु का दुख उठाना आवश्यक है, प्रभु श्री यीशु भूमिका को बना रहे थे. He was trying to tell them that who the Pharisees and Sadducees are. प्रभु श्री यीशु इस बात को बता रहे थे कि फरीसी और सदूकी कौन हैं. These are the people who were the religious leader. ये वे लोग हैं जो धार्मिक अगुवे थे. They thought that they know everything from the scripture. वे ये सोचते थे कि वे धर्मशास्त्र में से सब कुछ जानते हैं. These are the people who thought they are the only one who can interpret scripture. और ये वे लोग थे जो सोचते थे कि केवल ये वे लोग हैं जो धर्मशास्त्र का अर्थ बता सकते हैं. There is no one else who can tell the meaning of the scripture. और कोई धर्मशास्त्र के अर्थ को नहीं बता सकता. They thought that they are the sole authority over the scripture. और वे सोचते थे कि वे धर्मशास्त्र के ऊपर केवल अकेले अधिकार रखते हैं. They didn't even realize
the one who gave the scripture was here. वे इस बात को समझ तक नहीं पाए कि जिसने धर्मशास्त्र को दिया वो यहाँ पर था. The one who dictated everything to the prophets, जिसने नबियों को सारी चीजें बताई, वह यहाँ पर था. He was standing right before them. वह उनके सामने खड़ा था. And these people, the Pharisees and Sadducees, didn't like him. और ये फरीसियों सदुकियों ने उसे पसंद नहीं किया. So Lord Jesus was trying to tell them, the disciples, that these Pharisees and Sadducees, they don't interpret the scripture correctly. कि ये जो फरीसी और सदुकी हैं, ये धर्मशास्त्र का अनुवाद सही रूप से नहीं करते. And the Lord Jesus was trying to tell them that beware of them, कि उनसे सावधान रहो. And then Lord Jesus asks disciples a question. उसके बाद प्रभु श्री यीशु शिष्यों से एक प्रश्न पूछते हैं. And he asked them, what do the people think, who am I? और प्रभु श्री यीशु पूछते हैं कि लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में. When we look at this question, first it looks like Lord Jesus is trying to understand what people are trying to say about him. और पहले जब हम इस प्रश्न को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रभु श्री यीशु इस बात को पता करने की कोशिश कर रहे थे कि लोग उनके बारे में क्या बोलते हैं. But that's not the case. किंतु वह स्थिति नहीं है. Lord Jesus knows everything. प्रभु श्री यीशु को सब कुछ पता है. He knows every thought in the heart. और प्रभु श्री यीशु हर विचार को जानते हैं जो हृदय में है लोगों के. So what Lord Jesus was trying to tell, प्रभु श्री यीशु तो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे. He was trying to make disciples understand something. प्रभु श्री यीशु शिष्यों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे. So when Jesus asked this question, जब प्रभु श्री यीशु ने इस प्रश्न को पूछा, the disciples answered, some say that you are John, the others say you are Elijah, and some others say that you are one of the prophets. और शिष्यों ने जवाब दिया कि कुछ लोग कहते हैं कि आप यूहन्ना हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप एलिया हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप किसी और भविष्यवक्ता में से एक हैं. Because Lord Jesus was doing lot of miracles. प्रभु श्री यीशु बहुत से चमत्कारों को कर रहे थे. He was doing mighty miracles. प्रभु श्री यीशु बहुत बड़े बड़े चमत्कारों को कर रहे थे. So people were talking about him lot of things. प्रभु श्री यीशु के बारे में लोग बहुत सी चीजों को कह रहे थे. Some said that he is a prophet. कुछ लोगों ने कहा कि वह एक भविष्यवक्ता है. Some said something else. कुछ लोगों ने कुछ और कहा. So when disciples answered this question, Jesus asked them, what do you think about me? और प्रभु श्री यीशु ने जब ये जवाब को सुना तो प्रभु श्री यीशु ने दूसरा प्रश्न किया कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो. And the disciples answered back, the Peter answered back and said, you are the Christ, the Son of God. और पतरस ने जवाब दिया कि आप ख्रिस्त हैं या आप अभिषिक्त हैं और आप परमेश्वर के पुत्र हैं. When Jesus heard that, he said, you have learned it not from human being, not from flesh and blood, but you have heard from God, from the Father. और जब पतरस के इस जवाब को प्रभु श्री यीशु ने सुना तो उन्होंने जवाब दिया कि तूने इसे मनुष्यों के बुद्धि से नहीं, लहू और मांस से नहीं, बल्कि परमेश्वर से, पिता परमेश्वर से सुना है और वहां से जाना है. And Lord Jesus was trying to make that point that he is the Messiah, he is the Son of God, and he has come into this world for a purpose. प्रभु श्री यीशु इस बात को बताने की कोशिश कर रहे थे कि वे ख्रिस्त हैं, वे अभिषिक्त हैं और वे इस दुनिया में किसी विशेष कार्य के लिए आए हैं. And soon after that, Lord Jesus tells them that from the hands of the authorities and from the leaders, from the religious leaders, Son of Man has to suffer many things, and he is going to die, and he is going to rise again third day. और प्रभु श्री यीशु ने स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि
बहुत से अधिकारियों के हाथ से और धार्मिक अगुओं के हाथ से मनुष्य के पुत्र को दुख उठाना अवश्य है और प्रभु श्री यीशु मारे जाएंगे और तीसरे दिन फिर जी उठेंगे। And when Lord Jesus is trying to say that, he was trying to say that he is going to die for the sins of the world. और जब प्रभु श्री यीशु इस बात को बता रहे थे तो वे कहने की कोशिश कर रहे थे कि प्रभु श्री यीशु लोगों के पाप के लिए मारे जाएंगे। And when Peter heard that, he loved Lord Jesus very much, so he said, no, it's not going to happen. और पतरस ने जब ये सुना तो वह प्रभु श्री यीशु से प्रेम करता था, इसलिए उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, यह नहीं होगा। एंड जीसस rebukes him, प्रभु श्री यीशु से डांटते हैं एंड tells him that you are concentrating on the things of man but you are not concentrating in the things of God। और प्रभु श्री यीशु से डांट कर कहते हैं कि तू मनुष्य की बातों पर अपना ध्यान लगा रहा है, परमेश्वर की बातों पर अपना ध्यान नहीं लगा रहा है। एंड दिस इज द वे इट हैज टू हैपन, और इस तरह से यह होना अवश्य है। वाई इट वॉज नेसेसरी दैट द सन ऑफ गॉड should die for the sins of people। यह क्यों जरूरी था कि मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में पाप के लिए मारा जाए। The story goes back to Genesis, और कहानी उत्पत्ति में पीछे की ओर जाती है। God created everything, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। Then he created man in his own image, उसके बाद उसने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया। And he took the dust of the earth and he shaped it and he breathed into it। और परमेश्वर ने मनुष्य का जो मिट्टी ली, उसे साना, उसे आकृति दी और उसमें श्वास को फूंक दिया। And that's how God created man। He took effort to create him। परमेश्वर ने उसमें मेहनत करी पर मनुष्य को बनाने में। Everything else he just spoke and came into existence। और बाकी जितनी भी चीजें हैं परमेश्वर ने केवल बोल दिया और वे अस्तित्व में आ गई। But man he created with some effort। मनुष्य को कुछ मेहनत के साथ परमेश्वर ने बनाया। He took time, he fashioned it, he gave it shape। परमेश्वर ने समय निकाला, परमेश्वर ने उसे आकृति दी, परमेश्वर ने उसे एक कलाकृति के रूप में बनाया। He created it as an art form। So he loved human being, और परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम किया। So when Adam in the Garden of Eden, when he put Adam and Eve, he used to come and talk to them every day। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम और हव्वा को सदन की वाटिका में रख दिया तो वह उनसे हर दिन बात करने आया करता था। What a privilege they had, कितना बड़ा सौभाग्य उनका था। That the creator of the whole universe, कि पूरी सृष्टि का सृष्टिकर्ता used to come and talk to them, आकर उनसे बातचीत किया करता था। He used to spend time with them, वह उनके साथ आकर समय व्यतीत किया करता था। And they had fellowship with him, वह उनके साथ परमेश्वर के साथ संगति रखते थे। But God had told them, everything you can eat, but don't eat just fruit of this one tree। The day you will eat, you will die। और परमेश्वर ने उन्हें कहा हुआ था कि तुम सब कुछ खा सकते हो, किंतु इस एक वृक्ष का फल मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। But devil came and deceived them। शैतान आया और उसने उन्हें धोखा दिया। And when devil came and deceived them, he said, you will surely not die, but you will become like God। और उसने कहा कि तुम निश्चित रूप से नहीं मरोगे, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। That's the deception that devil wants to bring to us। और वह धोखा है जो शैतान लेकर आना चाहता है। He wants to tell us that we will be like God, we are ourselves God। और वह कहना चाहता है कि हम परमेश्वर के समान हो जाएंगे या हम स्वयं
परमेश्वर हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू, किंतु वह सच नहीं है। We are human beings and we do not have abilities. हम मनुष्य हैं और हम में क्षमता नहीं है। God knows everything. परमेश्वर सब कुछ जानता है, and we do not know anything. और हमें कुछ भी नहीं पता है। God is all powerful. परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, and we do not have power. हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। God can be present everywhere and at any time. परमेश्वर हर जगह पर उपस्थित हो सकता है, हर समय। But we cannot be present everywhere. We can be present only in one place. हम केवल एक जगह पर उपस्थित हो सकते हैं, हम सब जगह पर उपस्थित नहीं हो सकते। God can come down as a man, but man can never become God. परमेश्वर मनुष्य के रूप में उतर कर आ सकता है, किंतु मनुष्य कभी परमेश्वर नहीं बन सकता। So devil gave the deception that you will be like God. और शैतान ने उस धोखे को दिया कि तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। And Adam and Eve did commit that sin that they were asked not to commit. और आदम और हव्वा ने वो पाप किया जो परमेश्वर ने उनसे कहा था कि मत करना। They took the fruit of that tree and they ate. और उन्होंने उस फल को खाया, और उस फल को खाने के बाद पाप उनके जीवन में आ गया। The moment they ate the fruit, sin entered into their life and they became sinners, वे पापी बन गए। And when man became sinner, there was nothing that could redeem them from their sin. और जब मनुष्य पापी बन गया तो उन्हें कोई भी चीज उस पाप से छुड़ा नहीं सकती थी। Only a holy person had to shed his blood to redeem them. केवल एक पवित्र व्यक्ति को अपने लहू को बहाने की आवश्यकता थी ताकि वे उससे छुटकारे को पा सकें। Because sin is very terrible. क्योंकि पाप बहुत ज्यादा खतरनाक है। And sin eats a human being to the core. और पाप जो है मनुष्य को अंदर तक खा जाता है। So Jesus was trying to tell that what happened in the Garden of Eden, and after that every person sinned. For that I have come into this world. और प्रभु श्री यीशु इस बात को बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो कुछ अदन की वाटिका में हुआ, मनुष्य ने पाप किया और उसके द्वारा हर व्यक्ति ने पाप किया। And everyone is a sinner. और हर व्यक्ति पापी है। And because of that I have come. और उस कारण मैं आया हूँ। So that I can redeem people from their sins. ताकि मैं लोगों को उनके पापों से छुड़ा लूँ। And that's why I am going to die on that cross. और इसलिए मैं उस क्रूस पर मरने जा रहा हूँ। I am going to shed my blood. मैं अपने लहू को बहाने जा रहा हूँ। So that you can have life. ताकि तुम्हारे पास जिंदगी हो। So that you can come out of your sins. ताकि आप पाप से बाहर निकल आओ। And Lord Jesus was trying to tell it to his disciples. प्रभु श्री यीशु इस बात को अपने शिष्यों को बताने की कोशिश कर रहे थे। Today we also have that privilege. आज हमारे पास भी ये सौभाग्य है that we can come at the feet of Lord Sri Jesus. कि हम प्रभु श्री यीशु के चरणों पर आ जा सकते हैं। And we can tell him, और हम उससे कह सकते हैं that Lord Jesus, I have sinned. कि प्रभु श्री यीशु मैंने पाप किया है। I am a sinner. मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। Please forgive me of my sins. कृपया मेरे पापों को आप माफ कर दीजिए। I know that you died for me on that cross. मैं जानता हूँ कि आप उस क्रूस पर, उस स्तंभ पर मेरे लिए मर गए। And you shed your blood for me. आपने अपने लहू को मेरे लिए बहा दिया। Please wash me with your blood. क्या आप अपने लहू से मुझे धोकर साफ कर दीजिए। And give me a holy life. मुझे एक पवित्र जिंदगी दे दीजिए। And when you pray this prayer, Lord Jesus will gladly do it. और जब आप इस प्रार्थना को करते हैं,
तो प्रभु श्री यीशु बड़ी खुशी के साथ यह करेंगे। He will forgive your sins, वह आपके पापों को माफ कर देंगे। And He will give you a completely new life, और वह आपको एक बिल्कुल नई जिंदगी दे देंगे। So we can come with full confidence at the feet of Lord Sri Jesus today. तो आज हम पूरी हिम्मत के साथ प्रभु श्री यीशु के चरण में आ सकते हैं। And we can surrender ourselves into His hand. हम अपने आप को प्रभु श्री यीशु के हाथ में समर्पित कर सकते हैं।